ठीक है. This is a small topic. We'll be talking about ordinance making power of the president. So we will be discussing the ordinance making power of president. Power of president. And there is a definite question which will come in your MCQ based examination and also mains examination as and when required. So ordinance making power of the president comes under Article 123. It is under Article 123. So this can be direct MCQ based question. Okay. So now the question is, what is ordinance? Okay. It is a law. It is a law which is promulgated by the President of India when the Parliament is not in session. Okay. See, here the President of India promulgates a law when the Parliament is not in session. This does not mean that the power of President of India with regard to promulgation of ordinance is parallel to that of Parliament. It does not mean that. Parliament क्या करता है? They enact law. Okay. And here also what we are seeing is that President is enacting law through promulgation of ordinance when the Parliament is not in session. So you may have confusion or you may be under belief that the President is parallel to Parliament in this case. So in that case, you are wrong. Okay. It is absolutely wrong that Parliament and President, with respect to promulgation of ordinance, President enjoys legislative power parallel to Parliament is wrong. ठीक है. ये क्या है? ये एक तरह का इमरजेंसी पावर है. ठीक है. इट इज ए डेलीगेटेड पावर. ओके. दिया गया पावर है. तब जब वैसा सिचुएशन आए. ठीक है. इट इज ए डेलीगेटेड पावर. ठीक है. डेलीगेटेड मतलब दिया गया पावर. ठीक है. एंड नॉट पैरेलल पावर. पैरेलल को ऐसे सिंबलाइज करते हैं मैथ्स में, तो यहां पर दिखाने के लिए कर रहे हैं, बाद में यही यूज करेंगे. पैरेलल पावर. पैरेलल लेजिस्लेटिव पावर. लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. It is a delegated power and not parallel legislative power of the president compared to parliament. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. ठीक है. दूसरा, it is legislative power of president. समझो दोनों का डिफरेंस. What is legislative power? Law making power.
ठीक है, ये वाला जो लॉ मेकिंग पावर है आर्टिकल 123 के तहत दिया गया है, डेलीगेटेड पावर है। ठीक है, एंड इट इज नॉट पैरेलल टू लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। बराबर नहीं। क्यों बराबर नहीं है, वी विल सी इट, बट बिफोर दैट यहां तक समझ में आया, इट्स ए डेलीगेटेड पावर। ठीक है, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, it comes under the legislative power of the president of India, law making power of president law making power of the president of India. This law making power is not parallel to the legislative power of parliament. ये जो लॉ मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का, ये पैरेलल नहीं है पार्लियामेंट के। क्यों नहीं है पैरेलल, हम लोग देखेंगे। ठीक है, बट बिफोर दैट, व्हेन द ऑर्डिनेंस इज इन फोर्स, ऑर्डिनेंस इज इन फोर्स, ठीक है, कब तक फोर्स में हो सकता है, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। क्यों 6 वीक? फ्रॉम द डे ऑफ फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट टिल 6 वीक। देखो, ये सब समझेंगे, अभी बस सुन लीजिए। होता क्या है, ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है, व्हेन इज ऑर्डिनेंस ब्रॉट, व्हेन इज ऑर्डिनेंस ब्रॉट, ऑर्डिनेंस इज ब्रॉट only when parliament is not in session. अब पार्लियामेंट नॉट इन सेशन है, तो हमें पता है ना कि मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, इन दैट केस वी नीड सर्टेन लॉ। ठीक है, एंड दैट लॉ कैन बी इनेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। सर्टेन टाइम वी विल नीड एन इमरजेंसी लॉ। ठीक है, द सिचुएशन इज इमरजेंसी, so we need a law and parliament is not in session, so an ordinance will be brought. ठीक है, and this ordinance when promulgated by president of India on the aid and advice of council of minister will come into force. ठीक है, अब जब फोर्स में आ गया है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मान लीजिए पार्लियामेंट कल सेशन में नहीं था पर आज लॉ चाहिए। टिल टुडे द पार्लियामेंट इज इन सेशन, tomorrow the parliament is no more in session, so from tomorrow we urgently need a law, so ordinance will be brought. And we know maximum difference between two sessions of a parliament can be of 6 months, तो 6 मंथ तक तो ये लॉ चलना ही चाहिए ना। और नेक्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट जब हो, नेक्स्ट मीटिंग from the first day of next meeting, the ordinance will be in force for the next 6 weeks. And if the government does not want ordinance to lapse, what the government should do? The government should get it passed by the parliament. Within this 6 week time, the government should get it passed. Passed by whom? Parliament. अब समझ में आया पैरेलल क्यों नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट से पास होना जरूरी है। बिना पार्लियामेंट से पास हुए इट कैनॉट बिकम लॉ फॉर परपिचुइटी,
it is only temporarily in force for 6 months 6 week. ठीक है, तो जब तक 6 months 6 week का टाइम है, for 6 months and 6 week, the ordinance enjoys equal status to that of law. ठीक है, so what is the difference between law and ordinance? Law is permanent in nature. Ordinance in force for 6 week plus 6 month. उल्टा बोल दिया मैंने, 6 month plus 6 week होना चाहिए. चलिए इसको वापस लिख देते हैं. Will be in force for 6 month plus 6 week. It will assume permanency. Assume permanency. Only if passed by the parliament. If it is not passed, it shall come to an end. From the date when it has come into force, enforcement till 6 month plus 6 week, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? काइंडली लेट मी नो, ऑल ऑफ यू. ठीक है, समझ में आ गया सबको? जी सर। ठीक है, देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है एन ऑर्डिनेंस हैज एन ओवरऑल लाइफ ऑफ ए 6 month 6 week, 6 weeks 6 month and 42 days. D, till next meeting of parliament. Which is the right answer? Which is the right answer? नानो बहुत अच्छे, मोहन अच्छे, ए एंड सी बोथ. ठीक है, 6 week में कितना डे होता है? 6 into 7. सो आंसर इज बोथ. ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं. ठीक है, कि आपको कंफ्यूज किया जाए, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कि कंफ्यूज नहीं हो. ठीक है, अब हुआ क्या था? 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था. ठीक है, this 38th constitutional amendment act
happened in 1975. कौन होगा इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आर्टिकल 123 क्लॉज 4 ऐड हुआ। ठीक है, एज पर दिस क्लॉज 4 एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट। ठीक है, ये 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इंदिरा गांधी ने की। 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई। मोरारजी देसाई and Morarji Desai and Indira Gandhi did not have good term, and whatever Indira Gandhi did was re it was omitted, or it was whatever she has done to the constitution, that thing was rolled back by Morarji Desai government. And again, whatever she has done in 44th Constitutional Amendment Act 1978, it removed clause 4 of article 123। ठीक है, मतलब एन ऑर्डिनेंस कैन बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ए केस इन 1982। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, केस 1982 clearly stated that the ordinance can be challenged in the court। ठीक है, दैट मीन्स ऑर्डिनेंस इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। अभी जो करंट पोजीशन है, ordinance is open for judicial review. This is the current position. So if there is a question कि ऑर्डिनेंस पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो ऑर्डिनेंस इज एट प्रेजेंट ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, पर मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस लाना है। ठीक है, हैज टू ब्रिंग द ऑर्डिनेंस एंड पार्लियामेंट इज इन सेशन। ठीक है, कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैन ही prorogue the parliament, the ongoing session, to promulgate the ordinance? ऐसा कर सकता है क्या? Can he do it?
बताओ, can the president of India prorogue the ongoing session of parliament for the purpose of promulgating the ordinance? Can he do it? देखो, इसका आंसर है यस, ही कैन डू इट। यस, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फ्री टू prorogue pro pro prorogue the ongoing session to promulgate an ordinance. He can do it, ठीक है। देखो, पर इसमें एक कैच है। वाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी काम करता है तो एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अब क्या हो गया, एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी ऑन द सेम लिंक, सेम सिंक, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर सोल पर्पस से एडवाइस दिया है, सोल पर्पस ऑफ द एडवाइस is to circumvent the legislative process or law making process of parliament, ठीक है। if the sole purpose of the advice to prorogue the session of parliament to promulgate the ordinance is to circumvent the law making process of parliament, in that case judiciary can go for judicial review, ठीक है। अगर ऐसा एडवाइस इसलिए दिया गया है कि लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है पार्लियामेंट को, उसको सरकमवेंट कर दे। क्या है लॉ बनने का प्रोसेस? क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, ऑर्डिनरी बिल का केस देते हैं पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेशन चल रहा है दोनों का, ऑनगोइंग सेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर advises the president of India to end the session so that the bill should not be passed through them, but it should get directly status of law by circumventing both Lok Sabha and Rajya Sabha. In that case, it is open for judicial review. अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि द material on which the advice was given had the sole purpose to circumvent the law making process of Rajya Sabha and Lok Sabha, in that case it is open for judicial review. But President of India is free to prorogate an ongoing session to promulgate an ordinance. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, is the President of India free to prorogue an ongoing session to promulgate an ordinance? Yes, he is free to do so. But if the purpose is only to circumvent Lok Sabha and Rajya Sabha, it's open to judicial review. Free है, पर अगर पर्पस ये एस्टैब्लिश हो जाए तो जुडिशियल रिव्यू होगा। और कौन स्टैब्लिश करेगा पर्पस? कौन ये अपोजिशन करेगा या सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो लेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आया सर। ठीक है, आ गया, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग देखेंगे some of the specific thing related to the ordinance making power, ठीक है। देखो, सर एक सवाल था। देखिए आपका सवाल रिलेवेंट होना चाहिए, पूछिए।
आई मीन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही वो सेशन को रोक के ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। आई मीन वो खुद से बिना एडवाइस लिए खुद से भी कर सकता है। आपको याद है आर्टिकल 74 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग until and unless he is given advice by the Prime Minister of India, heading the Council of Minister. सर्टेन केसेस में ही उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। फॉर एग्जाम्पल डिसॉल्विंग ऑफ लोकसभा, उस केस में उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। कब है? जब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। इन दैट केस देयर एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। बाकी सारे काम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, एक्सेप्ट फ्यू सर्कमस्टांसेस, उनका जो एडवाइस है वो फॉलो करना है। डिस्क्रिशनरी पावर बहुत कम है इंडियन प्राइम प्रेसिडेंट को, तो वो उनके कहने पर ही प्रोरोग करता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अपने मन से नहीं कर देता है। देयर इज नो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। ओके सर। देखो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है, ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ही कैन प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस अंडर टू सर्कमस्टांसेस। ठीक है। ठीक है। when both the houses are not in session, or either of the house, ये अब एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, either of the house not in session। ठीक है। when both the houses are not in session or either of the house is not in session। ठीक है। दूसरा सर्कमस्टांसेस क्या है? circumstances occur, a double c u r, occur, ठीक है, where the president of India thinks it's necessary to act without waiting for the house to assemble। ठीक है। अब विदाउट वेटिंग फॉर द हाउस टू असेंबल है व्हेन ही थिंक्स। आपको लगता है क्या वो अपने मन से सोचते हैं? नहीं। एडवाइस ऑफ पीएम हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब मैं बार बार हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहा हूं तो मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं ये एडवाइस दे सकता है। प्रेसिडेंट को पता रहना चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी यही मानना है। ठीक है। आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सारा जो एडवाइस है जो प्रेसिडेंट को मिलता है, अब प्राइम मिनिस्टर के कहने पर सिर्फ वो नहीं मानता है। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कॉन्फिडेंस में होने चाहिए। ठीक है। तो ये दो सर्कमस्टांसेस है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, कैन एन ऑर्डिनेंस बी रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर?
रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है ना, पीछे से लागू हो सकता है क्या, मान लो कल ऑर्डिनेंस आ जाए, पीपल दोज हु आर born बिफोर 1980 speak Bengali are not domicile of Assam for last 3 generation have to stripped off or stripped off citizenship। तो लागू हो सकता है, अलग बात है कि इसको चैलेंज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, बट इट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, 1980 से लागू हो रहा है। ठीक है, born before 1980 स्पीक बंगाली नॉट ए डोमिसाइल ऑफ आसाम। उसके बाद जो 1980 के बाद जो बॉर्न हुए हैं, दे स्पीक बंगाली एंड दे आर नॉट ए डोमिसाइल ऑफ आसाम, उनका सिटीजनशिप नहीं लिया जा रहा, या बॉर्न आफ्टर। ठीक है, चलो, बॉर्न आफ्टर तो हो सकता है, लागू हो सकता है रेट्रोस। ये अलग बात है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके निरस्त कर दिया जाएगा, पर ये लागू हो सकता है। एक एग्जाम्पल है आपके समझने के लिए। ठीक है, ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, इट कैन कम इन टू फोर्स इवन फ्रॉम ए बैक डेट। इसका मतलब क्या हुआ, कैन कम इन टू फोर्स फ्रॉम बैक डेट। एग्जाम में याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, कैन ऑर्डिनेंस बी रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, यस इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तीसरा, पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव द ऑर्डिनेंस विद इन 6 weeks ऑफ इट्स रीअसेंबली। जैसे मिलता है उसके 6 वीक के अंदर उसको अप्रूव करना है। ठीक है, अगर ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया तो एक्ट डन एंड कंप्लीटेड अंडर ऑर्डिनेंस बिफोर इट लैप्सेस will remain fully active। ठीक है, ठीक है, ये फुली एक्टिव रहेगा। ठीक है, दूसरा, ऑर्डिनेंस हैज नो कनेक्शन विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। आप ये मत समझिए कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, नहीं। नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल P52। ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इट इज हैविंग नो कनेक्शन। ठीक है, अब आपको एक बात बता दूं, AK रॉय वाला केस मैंने बता दिया, अब आपको मैं बिहार का केस बता दूं। क्या गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है? यस, गवर्नर ऑल्सो हैव पावर ऑफ लेजिस्लेशन थ्रू ऑर्डिनेंस। गवर्नर भी ऑर्डिनेंस लेजिस्लेट कर सकता है। ऑर्डिनेंस
इसके पास इसका पावर है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 213 कब कर सकता है? व्हेन लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन, जहां पे यूनिकैमरल है, यूनी यूनी कैमरल, जहां पे बाय कैमरल है वहां पे बोथ, वहां पे बोथ होगा, क्या कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई तो है नहीं, माई बाप, ठीक है। बोथ इन केस ऑफ बाई कैमरल, legislative assembly does not enjoys equal power as, sorry, legislative council is not equal to legislative assembly, ठीक है। आपको मैंने बताया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, वेयर एज लोकसभा एंड राज्यसभा आर इक्वल, ठीक है। जो गवर्नर है ये किस चीज पे ऑर्डिनेंस बना सकता है? ओनली दोज थिंग्स, दोज मैटर विच आर अंडर स्टेट लिस्ट, ठीक है, ठीक है। प्रेसिडेंट का क्या है? ही कैन मेक ऑन एनी मैटर ऑन विच द पार्लियामेंट एंड राज्य पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, ठीक है। गवर्नर का क्या है? ओनली ऑन दोज मैटर विच आर अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। ऑर्डिनेंट ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नर कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम, एनी टाइम। सिमिलरली इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट कैन बी ऑल्सो विथड्रॉन एनी टाइम, ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर किसी के केस में नहीं है, ना गवर्नर प्रोमलगेट कर सकता ऑर्डिनेंस ऑन हिज डिस्क्रिशनरी पावर, नॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों जगह एडवाइसेस लगते हैं, ठीक है। दूसरा, गवर्नर के केस में 3 एक्सेप्शन है, ठीक है। पहला क्या है? अगर कोई मैटर है, बिल which is containing same provisions which requires previous sanction of president of India, बहुत सारा ऐसा बिल होता है जो किसी स्टेट में लाने से पहले प्रीवियस सेक्शन सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिया जाता है, ठीक है। तो उस केस में गवर्नर को अगर ऑर्डिनेंस लाना होगा तो प्रीवियस सैंक्शन लेना होगा। सेकेंड, अगर कोई बिल रिजर्व किया जाता है बाय गवर्नर, रिजर्व बाय गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो उस मैटर पर भी वो ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता है, उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना होगा। तीसरा, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है विच रिक्वायर्स द रिसीविंग ऑफ कंसेंट, कंसेंट नहीं, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उस मैटर पर भी गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता, ठीक है। इन 3 मैटर पे गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता है, ठीक है। बिल दैट रिक्वायर्स प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई मैटर है। तीसरा, जब वो बन जाता है एक्ट विच रिक्वायर्स रिसीविंग ऑफ एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इन 3 केसेस में एक्सेप्शन है, ठीक है। यहां पर क्या है? प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शन जरूरी है। प्रेसिडेंट अगर वो इंस्ट्रक्ट कर दिए कि हाँ भाई तुम ले आओ, तो ले आएगा, नहीं तो नहीं लाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। अब एक बात सुनिए, पहले क्या होता था? ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाती थी गवर्नमेंट, ऑर्डिनेंस है, इसके 6 मंथ प्लस 6 वीक्स
एक्सपायर होने के बाद, होने से पहले वापस गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ले आती थी, फिर ले आती थी, फिर ले आती थी, फिर ले आती थी, ये चलता रहता था। ठीक है। तब एक केस हुआ कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक्चुअली दो तीन केस है, पर ये वाला याद रखना आसान है, कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, 2017 में। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया, 7 जज बेंच। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, तो 7 जज बेंच के पास गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर देखे। उन्होंने बोला कि जो ऑर्डिनेंस है ना, वो नेचर ऑफ इमरजेंसी पावर है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को बार बार ऑर्डिनेंस में ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बार बार आप ऑर्डिनेंस में ला रहे हैं, उसका सिंपल पर्पस है दैट यू आर ब्रिंगिंग इट टू usurp द लेजिस्लेचर फंक्शंस, usurp the legislature's function. What is the legislature's function? To make law. So you are usurping it. So it is unconstitutional. ठीक है, it is a fraud on constitution. ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, if a government wants that ordinance should continue beyond 6 weeks of reassembly. ठीक है, it has to be, it has to be passed by the legislature. गवर्नमेंट साफ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। ठीक है, कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डिनेंस 6 मंथ प्लस 6 वीक ऑफ रीअसेंबली के बाद भी चले, तो इसको पास करवाइए। डोंट ट्राई टू डू ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उससे पहले होता था बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जाता था। 2017 कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले में ये जजमेंट ले आई सुप्रीम कोर्ट, और बोला नहीं, अगर आप लोगों को करना है तो उसको सिंपली आप लेजिस्लेचर से पास करवाइए। सो विद दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, comes to an end. Your only topic remaining is constitutional body, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, और एक पीआरआई इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, यही 4 टॉपिक रह गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, सो विद दिस नेक्स्ट 4 क्लासेस आपके ये सारे खत्म हो जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर। इन केस ऑफ एनी डाउट लेट मी नो नाउ।